Welcome, Virgo. Hello. Welcome to my reading. Well, this is your reading about no contact love situation. No contact love reading, basically. So, let's start with your reading. But before starting, जो कहना है वो यही है कि this is a general reading, collective reading for all the Virgos. So, please keep this in mind that certain things will resonate, certain things will not resonate. Okay? Since it's a general reading, collective reading. You can watch it as a Virgo sun sign, Virgo moon sign, Virgo rising or ascendant sign, and Virgo Venus sign. Okay, you can check out your astrological birth chart for that, for the placement of the planets. Accordingly, you can watch. Okay, now this is a no contact love reading. So first, I check the mutual energies for both of you. आप दोनों के बीच का म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, मामला क्या है. उसके बाद इंडिविजुअली चेक करेंगे आप लोगों का एनर्जीज. वो फर्स्ट आई बी चेकिंग योर एनर्जीज, देन आई बी चेकिंग योर पार्टनर्स एनर्जीज, एंड एट लास्ट गाइडेंस देखेंगे. Okay, please show us the mutual cards in universe, mutual energies. What's the mutual energy between Virgo and their partner? What's the mutual energy between Virgos and their partner? What's going on with them? What's going on with them between Virgo and their partner? अरे बाप रे बाप, What's wrong with you guys? Virgo, इसके पहले मैंने लियो का किया, वहां पर भी 3 of swords, यहाँ पर भी 3 of swords. You guys are heartbroken, my dear. You guys are so much in pain, so much in emotional pain. You want happiness, certainly. Deep down, that is what you're seeking. A chapter has finished or is about to finish. Time to close that book. You know, बंद कर दीजिए उस किताब को. वो किताब अब पढ़ना खत्म हो गया. You have to start it afresh with a new book, a new chapter. New chapter from a new book. रिश्ते में कुछ खत्म हो गया, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था जो खत्म हुआ या पूरा पूरी खत्म हो जाएगा. बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है आप लोग, इमोशनल पेन में है, और डीप डाउन इस अंधेरेपन में, क्योंकि अंधेरापन से छाया हुआ है ना, दिल दिमाग कुछ भी तो सही नहीं है इस वक्त. इसी अंधेरेपन को हटाना चाहते हैं आप दोनों ही, जो कि अच्छी बात है. सन का कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक. So you guys are looking for happiness, and you will get happiness because you're looking for it. You want it, and divine will provide you so. देखिए आपका एनर्जीज Please show universe Virgo's energies. What's on Virgo's side? What's on Virgo's side? Virgo's energies. You want to be victorious, you know. You want to be victorious. विक्ट्री चाहते हैं आप वो. इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, एक इमोशनल हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी लव लाइफ, फुल ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, बहुत बहुत बुरी तरह से चाहते हैं आप. You want to start it again, a brand new emotional beginning.
that is what you're heading for, because you're looking for that, and obviously you will be heading for that since you're looking for that, a brand new emotional beginning. और इसी बारे में ये शुरू करते हुए आप विक्ट्री चाहते हैं कि फुल इमोशनल कंटेंटमेंट आपके पास रहे, सारी दुनिया का खुशी, दुनिया की खुशी हर एक चीज में आप खुश रहे, यू नो। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है, स्टोरी और ज्यादा क्लियर होगा तब। It shows the card in reverse for Virgo's partner. What's the energies out there? Virgo's partner. Virgo's partner. Energies for Virgo's partner. Energies for Virgo's partner. Your partner is wanting to move towards calmer waters, trying to bring peace and harmony in the situation उनके लाइफ में। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन शुरू करना चाहते हैं फिर से। अभी फिलहाल जो बंद है आप लोगों में, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन चल रहा है, आपका पार्टनर वो फिर से शुरू करना चाहते हैं। उनके दिमाग में यू नो तरह तरह के आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे वो बातचीत शुरू करें जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। एंड यू आर लुकिंग फॉर अटमोस्ट इमोशनल कंटेंटमेंट, हर तरह से खुशी चाहिए आपको। अच्छी बात है, डेफिनेटली सबको खुशी चाहिए, सब खुश रहना चाहते हैं और वही तो होना चाहिए। आपके पार्टनर को शांति की तलाश है, वो शांति चाहते हैं। Even he is also on the right track, or she. ट्रांजिशन फेस चल रहा है आप दोनों में। चेंज, इस चेंज में है आपका पार्टनर जो चेंज यू नो शांति लाए। कुछ पावर इश्यूज, कुछ डोमिनेंस आप दोनों की तरफ से, किसी के तरफ से हुआ था डेफिनेटली, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में वो मैं देख पा रही हूँ। तो उसी चीज को लेके हो सकता है ये सब मामला घटा है, तब जाके ये नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन ये सब सिचुएशन पैदा हुआ है। और आपके पार्टनर अब तक बहुत सोचे यू नो, तभी जाके उनके दिमाग में ये सोचने की वजह से ही तरह तरह के आइडियाज आ रहे हैं कम्युनिकेट करने का आपसे। कभी कभी रेस्टलेस भी हो रहे हैं, कभी कभी स्पाई भी कर रहे हैं आपको, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत नॉलेज गैदर करना चाहते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर अदरवाइज अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हैं तो शायद वो आपको मैसेज किए भी, कॉल किए भी, टेक्स्ट किए भी, और नहीं किए तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, करेंगे भी, क्योंकि बहुत पीसफुली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत सोच लिया, बहुत जानकारी रख रहे हैं आपके बारे में, आप किस हाल में हैं, कैसा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सो दिस इज इट। और बहुत होपफुल है आपका पार्टनर, बहुत होपफुल है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है। हील कर रहे। ऑब्वियसली चोट तो उन्हें भी पहुंचा है ना, दोनों को चोट पहुंचा है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी में आया ये कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का ना, तो ऑब्वियसली दोनों ही सेम थिंग हैपेंड विद लियो, ऑब्वियसली विद द अदर कॉम्बिनेशंस। इसीलिए मैं थोड़ा हैरान हो गई यू नो, क्या हो क्या रहा है सब लोगों में। सो बहुत होपफुल है,
बहुत काम होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने टेम्पर को बहुत काम कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज से वो मेंटली अभी जा रहे हैं, अगर बहुत हॉट टेम्पर थे आपका पार्टनर तो अभी बहुत ही ज्यादा शांति की तरफ जा रहे हैं, शांत कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को, और अभी प्रोग्रेस भी करेंगे, तब जाके शायद हो सकता है आपको कम्युनिकेट करे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपको कांटेक्ट करे, रेजुविनेट कर दे। बहुत होपफुल है, पॉजिटिव है, रिन्यूअल चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आपका पार्टनर। नाउ एनर्जीज कैन बी रिवर्स्ड, प्लीज कीप दैट इन माइंड वर्गोस, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, एनर्जीज कैन फ्लिप, जो साइड आपको रेजोनेट करे वो आप रखें, जो साइड आपके पार्टनर को रेजोनेट करे, क्रॉस वॉचर दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर यू, वो आप रखें। ओके, let's check out the guidance. Please show the guidance card, universe. Please show the guidance card for Virgo and their partners. No contact love reading. What's the guidance for Virgos? No contact love reading. लेकिन एक चैप्टर खत्म हो गया, अब बारी है दूसरे चैप्टर का। Balance. You have to maintain moderation. You have to maintain balance. You cannot be confused. You have to trust your intuition. You have to see the truth. You have to trust your own self. Because अभी भी confusion काम कर रहा है आप में, हो सकता है स्पेशली वो एक मिडिल ग्राउंड ढूंढिए। कंफ्यूजन अगर है तो एक मिडिल ग्राउंड ढूंढिए। And you have to choose your battles carefully. You have to choose your battles carefully, wisely. हर एक मामले में लड़ पड़ना, झगड़ लेना, no, it doesn't make any sense. आपका ही एनर्जी बेकार में जाया होगा। बेकार में खर्चा मत कीजिए, अपना एनर्जी बचा के रखिए। You have to trust the present moment कि जो भी हो रहा है इसका कुछ ना कुछ मतलब है, वो आप लोगों को सुधारने के लिए हो रहा है, for the good. Everything has a reason. जो भी हो रहा है भले के लिए हो रहा है, ताकि आप स्पिरिचुअली और अवेकन्ड हो, स्पिरिचुअली और इम्प्रूव करे। ये सब चीजें, ये सब एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करेगा, हेल्प करेगा बहुत। इट्स नथिंग बट इम्प्रूविंग योर स्पिरिचुअल सेल्फ, योर सोल। These are the lessons for your soul, my dear Virgo. You have to find clarity through calm, and your partner is already doing that. Hopefully you're also doing that because you're looking for emotional contentment. लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? What is the ingredient that you need? Peace. If you do not have peace, how can you find emotional contentment? With peace comes emotional contentment, mental satisfaction, जो भी बोल लीजिए। शांति नहीं है तो कुछ नहीं है, शांति है तो सब कुछ है। Peace is that powerful and extremely important for your mental health, for your emotional health, for your physical health, and for your spiritual. Okay? So, peace prevails. Peace, hope. Okay. Anyway, so this was it. This was all about your reading. This was all about your guidance. Please pay heed to the guidance. Guidance को ध्यान दे, एवे उसे नजरअंदाज मत कर दे, क्योंकि ये रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ इंसाइट मिले, गाइडेंस मिले। कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और आपके गाइडेंस कार्ड में तो डीप डाउन 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे, किस तरह से करे, ये सब बहुत कुछ चल रहा है दिलो दिमाग में। सो क्लैरिटी,
एक मिडिल ग्राउंड लीजिए, थोड़ा सा ये भी रहे, थोड़ा सा वो भी रहे, बैलेंस. That is what universe is asking you to do in the form of guidance. तभी जाके चैन की नींद सो पाएंगे आप. Okay, so thank you so much, Virgo. I hope you like this reading. Thank you so much. See you in my next reading. Stay blessed. Till then, bye bye. Take care.